Good morning, children. So, we are moving to lecture number 2 of chapter 9, that is our economic system. Now, before starting lecture number 2, let us revise something about lecture number 1. In first lecture, I taught you what is meant by economic system. I give the introduction of economic system. Then the three sectors existing in economy: the primary sector, secondary sector, and service sector. These are the three main sectors which we are supposed to work, either of you. When you grow up, when you come to age of understanding, earning, you have to absorb yourself in this of the sectors. Now, what is meant by primary sector? Primary sector means agriculture or agriculture related activity along with natural resources, that is called mining and collection of natural products and all these things. खेती बाड़ी जिसे बोलते हैं. And primarily India is an agriculturist nation, so primary activity dominates Indian economy. Then comes to secondary sector. Secondary sector means whatever we obtain from as a raw material from primary sector, we turn into finished goods. That is called secondary sector. We turn into finished goods, ट्रांसफॉर्मेशन गुड्स, जिसको हम इंडस्ट्री बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं, और कई सारे एग्जांपल्स भी मैंने आपको दिए थे. Then it was service sector. What is the service sector? Service means नौकरी नहीं, सेवा. In order to combine primary sector along with secondary sector and the production which is done in secondary sector finally reaching to consumers, there is a need of service sector. What things are included in service sector? Yesterday I told you: transportation, communication, infrastructure, hospitality, banking, insurance. These are all the sectors which are included in service sector. Right? Then our next topic was types of ownership. First ownership was government company. What is meant by government company? Government company means those companies which are run by government. That means the owner of that company is government itself, either state government or central government. उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सारा इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से किया गया है. उसके मालिक कौन होते हैं? सरकार. फिर आते हैं प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी मतलब आज हम देखते हैं स्टॉक मार्केट में, अगर बच्चे लोग आप जो कि आप फ्री हो पूरे दिन, मेरे को मालूम है सब कितने लेक्चर्स देखते हैं, कितने पढ़ाई करते हैं, मालूम है, सब मालूम है. पूरा दिन फ्री नहीं रहते हो. आप CNBC चैनल देख रहे हो, वो स्टॉक मार्केट के चैनल आते हैं ना. शायद आप बच्चे लोग में से किसी के पापा मम्मी घर पे या बाहर ऑफिस पे स्टॉक मार्केट का काम करते होंगे, तो उसको मालूम होगा. पापा से बात कर लेना, जिसके भी पापा इसमें कनेक्टेड है स्टॉक मार्केट से, उसको बोलना कि सर मैं ऐसा बोला था, आप मेरे को थोड़ा नॉलेज इसके बारे में बता दीजिए, आपको बताएंगे. CNBC जो चैनल आती है स्टॉक मार्केट की, उसमें सारी ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज होती है. तो जो प्राइवेट कंपनीज है जैसे कि रिलायंस है, टाटा है, इन्फोसिस है, TCS है, इतनी
जायंट कंपनीज, इतनी जायंट बड़ी बड़ी कंपनियां। विदेश की हम बात करें तो हमारी कंपनी तो उसके सामने कुछ नहीं है, बिल्कुल चना ममरा जैसा है। अगर हम विदेशी कंपनी की बात करें तो सबसे ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां यूएस में है? मान लो एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है। हमारा पूरे हिंदुस्तान का जितना बजट नहीं है उससे बड़ी उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टेस्ला है, एप्पल है, टेस्ला है, माइक्रोसॉफ्ट है, जनरल इलेक्ट्रिक्स है, शेवरॉन है, राइट? कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, कई देश के जीडीपी से ज्यादा उसकी आय होती है, टर्न आय है। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियां जिसको प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। फिर आते हैं जॉइंट स्टॉक। जॉइंट स्टॉक मतलब 51% इन्वेस्टमेंट सरकार का होता है, गवर्नमेंट का, आइदर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और 49% इन्वेस्टमेंट लोकल होता है, इंडिविजुअल। मतलब मैनेजमेंट सरकार का होता है, लेकिन अपॉइंटेड लोग जो होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में से आते हैं। माने पैसे का हम बात करें, इन्वेस्टमेंट का, तो सरकार के पास कोई कमी नहीं है। और टैलेंट की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में कोई टैलेंट की कमी नहीं है। तो टैलेंट प्लस मनी when gets together, that means public private partnership, one type of public private partnership, right? जिसके मोड पे जो कंपनी चलती है उसको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो तीन की मैंने आपको बात लास्ट लेक्चर में बताया था। Now we will talk about fourth sector, that is called cooperative sector. अच्छा, कोऑपरेटिव सेक्टर मतलब कोऑपरेशन। देखो उसका नाम क्या है, कोऑपरेशन मतलब कोऑपरेटिव। ज्यादातर कोऑपरेटिव सेक्टर एग्रीकल्चर में दिखाई देते हैं। बड़ी बड़ी मंडी होती है, फार्मिंग होती है, तो जो फार्मर्स होते हैं वो बेसिकली अपने फार्म प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, अगर वो इंडिविजुअली बेच ना जाए तो ट्रेडर है, व्यापारी है, उसको चूना लगा देगा, कंफर्म, बहुत सस्ते दाम में खरीदेगा और अपना मुनाफा निकाल देगा। तो इसीलिए फार्मिंग सेक्टर में ज्यादातर कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखी जाती है। मान लो सबसे बड़ी इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटी है शुगर कोऑपरेटिव सोसाइटी। The states which are producing sugar canes, lakhs of farmers are producing sugar cane. Take for example our Junagadh district, Amreli, बराबर, राजूला साइड बहुत शुगर केन की प्लांटेशन होती है। नासिक, सिरडी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में शुगर केन होता है। यूपी इज द लीडिंग प्लेस स्टेट प्रोड्यूसिंग शुगर केन। लाखों फार्मर्स शुगर केन की कल्टीवेशन करते हैं। अच्छा, उसका मतलब क्या होता है कि शुगर केन को आप हार्वेस्ट कर लो तो तकरीबन 1 या 2 दिन में उसको बेच देना पड़ता है, वरना द जूस ऑफ द शुगर गेट्स इवेपोरेटेड, मतलब सड़ जाता है, सूख जाता है, उसका कम दाम मिलता है। और शुगर की प्रोडक्ट क्या होती है, शुगर केन की प्रोडक्ट आइदर शुगर और जैगरी, यू नो, बाकी सब बाई प्रोडक्ट होती है, राइट? मेन शुगर, खांड सरी और जैगरी, साकर जिसे हम बोलते हैं। तो फार्मर लोगों ने छोटी मोटी शुगर की मिलें लगा रखी है कोऑपरेटिव बेसिस पे। मान लो एक गांव है, अगर 100-150 फार्मर्स उसमें खेती बाड़ी करते हैं, सब शुगर केन बोलते हैं, तो वो सब शुगर केन को अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेच देंगे। उधर प्रोसेस होगा, जैगरी बनेगा, खांड बनेगी, फिर बाजार में मार्केटिंग होगा। आहिस्ता आहिस्ता कंपनी बड़ी हो जाती है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी बड़ी हो जाती है। बेसिकली व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी? In order to stop the exploitation of existing members, an institution which is run on no profit, no loss base
सोसाइटी का मेन उद्देश्य क्या है कि बाहर की महंगाई के सामने एक्सप्लॉयटेशन ग्राहक का ना होना चाहिए, मेंबर का होना चाहिए। और सेकेंड थिंग, सबको अपना प्रोडक्ट बेचने का मौका मिले। अच्छा, ये कोऑपरेटिव सेक्टर में भारत सरकार और राज्य सरकार जो भी है, गुजरात सरकार है, महाराष्ट्र, कोई भी है, कई सारे सेक्टर्स में बहुत मदद करती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी पे टैक्स भी कम लगता है, प्राइवेट कंपनी पे टैक्स होता है, पब्लिक कंपनी पे टैक्स होता है, सब पे टैक्स होता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में टैक्स भी कम लगते हैं। देखो हमारे भावनगर में 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हैं जो कोऑपरेटिव बेसिस पे चलते हैं, मतलब बैंक। आपने वो नाम सुना होगा, भावनगर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, विच इज मैनेज बाय फार्मर्स एंड द पीपल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन भावनगर। आज कितनी बड़ी बैंक है, कई लोग उसमें काम करते हैं, बिल्कुल पैरेलल बैंकिंग जैसा व्यवहार है, राइट। दूसरी बैंक है भावनगर नागरिक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक है, बराबर है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फिर ये सब मंडी होती है, एपीएमसी मार्केट, वो सब कोऑपरेटिव बेसिस पे चलते हैं। आप मार्केटिंग यार्ड पे देखते होंगे, कटाई के समय में रात भर फार्मर्स आ जाते हैं अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए। ऑनियन होता है, शाकभाजी होते हैं, कई सारे प्रोडक्ट। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐसे चलती है, सबका साथ, सबका विकास, जो हमारे मोदी साहब बोलते हैं, इसी तरह, राइट। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ लेट अस सी, देयर आर मेनी पीपल इन द कंट्री who are not economically sound. They are not in the condition to start their own small or cottage industry. क्योंकि भारत एक गरीब देश है और सबके पास इतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती जो अपना छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सके, व्यवसाय शुरू कर सके, right? Such people make cooperative society, means group, where they undertake the manufacturing and selling process. और हमारी गुजरात की शायद सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और हमारा गुजरात का नाक है, गुजरात का स्वाभिमान है, जिसको हम बोलते हैं लिज्जत पापड़। बहुत छोटे, मतलब क्या बोलते हैं, छोटी जगह में से, छोटे इन्वेस्टमेंट में से, आइडिया में से वो शुरू हुई थी राजकोट में। सारी महिलाएं ही थी उसकी मेंबर्स। आज लिज्जत पापड़ कितना बड़ा यूनिट हो गया है। लिज्जत के जो पापड़ आते हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, राइट। लिज्जत पापड़ इज एक्सपोर्टेड टू 26 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और यू विल नॉट बिलीव देयर आर मोर देन 1,40,000 मेंबर्स, सप्लायर्स, ऑल वुमेन, सारी महिलाएं जो शोषित है, पीड़ित है, जो दयकता है, जिसका ज़्यादातर महिलाएं ऐसी है जो गरीबी में से आती है, हस्बैंड कोई काम नहीं करता, किसी को हस्बैंड ने छोड़ दिया है, बच्चे छोटे हैं। कई महिलाएं ऐसी है जिसका कोई आमदनी का साधन नहीं होता है, उस पर घर पे जिम्मेदारी होती है। तो ये लिज्जत पापड़ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी शुरू हुई, उसका मकसद क्या था कि ईच एंड एवरी वुमन शुड लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। हर एक महिला, हर एक मां बहन एक सम्मान की जिंदगी गुजार सके। हर एक महिला एक इज्जत से समाज में रह सके, अपने बच्चों की परवरिश कर सके, उसको पढ़ा सके, और खुददारी की, इज्जत की रोटी खा सके 2 टाइम। तो उसको काम देना पड़ेगा। तो शुरुआत में पापड़ बेलने का काम किया, वो बिजनेस चल गया कोऑपरेटिव बेसिस पे। आज लिज्जत पापड़ कोई प्राइवेट कंपनी से कम नहीं है, एवरीथिंग इज प्रोफेशनल। आज एक लिज्जत पापड़ बहुत बड़ी कंपनी के रूप में बाहर आ गई है, समझ में। तो दिस इज द मिरेकल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी।
अगर उसका मैनेजमेंट सही रहा तो। कई ऐसे भी होते हैं उसका मैनेजमेंट निष्फल होता है, बंद हो जाती है, हम इसकी बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग पॉजिटिव। ओके, तो ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसे शुरू होती है सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन रुकाने के लिए। द यूनिट्स that are started with cooperation on a group of people are known as cooperative sector. For example, dairy industry, Amul. Amul was started on cooperative basis way years back. आज अमूल आप देखो 10,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा उसकी रेवेन्यू है अमूल की। आज अमूल पूरे हिंदुस्तान में फैला है। आज मेरे को एक चीज आप बताओ जो अमूल नहीं बनाता और सबसे ज्यादा दाम में अमूल पे ये चीजें बेचता है। अमूल की आप कोई भी प्रोडक्ट देख लो कितना दाम होता है, फिर भी लोग खरीदते हैं। अमूल का आइसक्रीम देख लो, नॉर्मल आइसक्रीम देख लो, डबल दाम होता है। अमूल की कोई भी प्रोडक्ट देख लो, चाहे बटर मिल्क देखो, बटर देखो, चीज देखो, कोई भी प्रोडक्ट देखो, इट इज मोर देन 10 to 12,000 करोड़ कंपनी। अमूल को क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सारे चमत्कार होते हैं। नाउ ये बने थे 4 ओनरशिप वाले हिस्से, एक प्राइवेट ओनरशिप, पब्लिक ओनरशिप, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ वी आर कमिंग टू अनदर टॉपिक दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। तो ये मैं आपको बोलूं बच्चों कि ये समझने के लिए आप बहुत छोटे हो। ये पूरा टॉपिक आपको 10th स्टैंडर्ड, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हो, 11th 12th में पढ़ने को आएंगे, तब आप बड़े हो जाओगे, राइट? तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मैं बड़े बच्चे को तो इजीली उसके दिमाग में घुसा देता हूँ, लेकिन 8th वाले बच्चे को व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम समझते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं थोड़ा बोलूँगा आप समझ जाओगे। अप टू 1991 our economy was called closed economy. When India became free, independent, along with constitution, you studied, right? Our constitution came into force in 1950. इंडिया became रिपब्लिक। उसके साथ 15 मार्च 1951 को हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी बनाई गई, राइट? आजाद भारत हुआ तो भारत के लिए इंडस्ट्रीज तो चाहिए ना अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि जब ब्रिटिश इधर से गए थे तो कितनी बेकारी, कितनी गरीबी, सब कुछ छोड़ के गए थे। बिल्कुल हिंदुस्तान की हालत मुर्दे जैसी थी, उसको जिंदा करना चाहे, तो इसीलिए हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। और ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी बढ़िया तरीके से काम करवाने के लिए हमने 5 years प्लान बनाए। एंड दिस 5 years प्लान वाज इंस्पिरेशन फ्रॉम रशिया, बिकॉज when Russia became free in 1919, right? रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। रशिया आज़ाद हुआ ज़ार निकोलास की जुल्म सितम से। नई सरकार बैठी, वो सरकार बैठी थी कम्युनिस्ट सरकार। कम्युनिस्ट सरकार मतलब क्लासलेस सोसाइटी, कोई रिच नहीं, कोई पुअर नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सब रशियंस। All the factors of production is owned by state. कोई प्राइवेट ओनरशिप ही नहीं है, सब कुछ है सरकारी है, सरकार की जिम्मेवारी होती है। सबको खाना पीना, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, रहना, सब कुछ अवेलेबल करवाने का वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। सब सरकारी नौकर है, सबको नौकरी मिल जाती है, सबको सरकारी काम करना पड़ता है। और इसी तरह ये सोशलिज्म में 1919 से 1939 मतलब 20 साल रशिया मेड अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस।
आप मानोगे नहीं, आप नेट पे सर्च करने हैं अर्ली रशियन एरा ऑफ कम्युनिज्म ऐसा लिखना, अर्ली कम्युनिज्म इन रशिया ऐसा लिखना, आपको सब कुछ मिलेगा। मेरे भी ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास तो टाइम की लिमिट है, 45 मिनट से मैं आगे जा नहीं सकता, तो मैं बहुत नहीं समझा सकता क्योंकि लेसन भी चलाना है। आप ढूंढ लेना, मैं आपको बोलता हूँ। रशिया में अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस इन कम्युनिज्म। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ तो जर्मनी उस वक्त सबसे पावरफुल नेशन था, माइटी नेशन जर्मनी। रशिया ने जर्मनी को भी डिफीट किया। वर्ल्ड वॉर शॉक्ड बाय रशियन प्रोग्रेस कि 20 साल में रशिया ने ऐसा कैसे किया। तब जाके मन को पता चला 1945 के बाद कि रशिया ने फायर प्लांट के तहत सखत मेहनत करके ये सब कुछ हासिल किया। तो उसके इंस्पिरेशन से हमने इंडस्ट्रीज के लिए, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फायर प्लान की पॉलिसी बनाई, जिसको हम पंचवर्षीय योजना बोलते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई, 5-5 साल लगाने का, फिर हर साल उसका रिव्यू करने का। 2-3 योजना में बहुत काम हुआ, सरकार इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी लगी, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लगे। फिर उसके बाद चौथी 5वीं पंचवर्षीय योजना में से हम हमारी इकोनॉमी को गिरते हुए देखने लगे, मतलब हमारी इकोनॉमी गिरने लगी, इनकॉम्पिटेंसी फील होने लगी। जो बड़े बड़े सरकारी यूनिट थे वो घाटे में चलने लगे। पार्लियामेंट में उसका हिसाब होता था और सारा घाटा हम पे पास होता था, हम पे पास होता था। और इतनी महंगा है कि इसकी बात ही मत करो, क्योंकि जो सरकारी यूनिट जो घाटे करते थे वो हमारी जेब में से देना पड़ता था। और लोगों को भी ऐसा लगा कि चलो एक बार सरकारी काम मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर पूरी जिंदगी आराम ही है, काम करो ना करो कोई पे सैलरी तो मिलती ही है। ऐसी सोच थी और इसी सोच की वजह से almost all the public sector units were running under losses. 1980 के बाद हमारी हालत बहुत खराब हो गई। 1980 to 90 का जो दशक था, that is a black part in Indian economy. पूरी इंडियन इकोनॉमी लड़खड़ा चुकी थी, राइट? क्लोज मार्केट सिस्टम था, कंपटीशन जैसा कोई माहिर मोल नहीं था, जो लिमिटेड प्लेयर्स थे इधर, वो कंज्यूमर को लूटने से बाज नहीं आते थे। आपने वो वेब सीरीज देखी होगी स्कैम, हर्षद मेहता की, उसमें क्लोज्ड इकोनॉमी का बताते हैं। स्टॉक मार्केट जैसा कुछ था ही नहीं, था बिल्कुल लिमिटेड, कम लेवल पे था। तो ये सारी जो हमारे उस वक्त के प्लेयर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स, मतलब प्लेयर्स पर मैन्युफैक्चरर्स, वो सिस्टम का फायदा लेते थे। क्योंकि उस वक्त क्या था, अगर आपको कोई यूनिट चलाना है, लगाना है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपको कोई यूनिट बंद करना है, लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको एक्सपांशन करना है, परमिशन लेनी पड़ेगी सरकार की, राइट? बाहर की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना है, परमिशन, मतलब लाइसेंस राज था। और इतना करप्शन था, इतना करप्शन जिसकी बात ही आप करते हो। लोकल प्रोड्यूसर्स वर लिटरली फेड अप, इवन पीपल वर फेड अप, क्योंकि पैसे खरीदते थे लेकिन ये क्वालिटी की चीजें नहीं आती थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से 2002 में बजाज कंपनी ने बूस्टोक इंजन बंद कर दिए, वरना बजाज कंपनी 1962-63 से चल रही थी। उसकी एक खासियत आपको मालूम होगी, आपके पापा या आपके दादा ने चलाया होगा बजाज, पूछ लेना। आज बजाज कंपनी जो 2 व्हीलर बनाती है, ऑटो बनाती है, एक साल में 50 मॉडल लॉन्च करती है। लेकिन जब क्लोज मार्केट इकोनॉमी का जमाना था, तब वो कंपनी की एक खासियत थी, मेरे को मालूम है, मैं आपकी उम्र का था,
मैंने भी चलाई है बजाज। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम जो रह जाता था स्कूटर में, वो प्रॉब्लम 40 साल तक सॉल्व नहीं हुआ। 40 साल। आज वही कंपनी एक साल में 40 मॉडल लॉन्च करती, बिकॉज वी आर इन ग्लोबल कॉम्पिटिशन एट प्रेजेंट। वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम क्या था? आप बजाज में जाते हो, स्कूटर चलाते हो, कहीं भी बजाज अटक गया, बंद हो गया, कितना भी आप पसीना बहा लो शुरू नहीं होगा। कितना भी पसीना बहा लो, थक जाओगे आप कीक मार मार के, शुरू नहीं होगा। उसको फर्जियात अगर बजाज बंद हो गया स्कूटर चलाते चलाते, तो उसको फर्जियात उसी जगह पे लेटाना पड़ता था। लंबा कर दो रास्ते पे, सुला दो उसको। फिर पेट्रोल की नॉब का एडजस्टमेंट था, 2-3-5 सेकंड तक उसको रास्ते पे सुलाए रखते हो, फिर उसको खड़ा करते, फिर किक लगाते भाग जाते। क्यों? पब्लिक लेती थी, मजबूरी थी। आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा। मैं जब आपकी उम्र का था तो आप तो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग देखते हो, सोनी देखते हो, एलजी देखते हो, बराबर है ना? हमारे जमाने में एक्सो पैरेंट्स, ये जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आता था, अपट्रॉन, केल्ट्रॉन, नाल्को, ब्लू डायमंड, क्राउन, डायोडारा, सलोरा, ईसीटी, इतने बढ़िया टीवी, एक झापट लगाओ तो वॉल्यूम बढ़ जाता, ऊपर से एक झापट लगाओ तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता। ऑन ऑफ का बटन की कोई मायना ही नहीं था, सिर्फ देने का लायक थे। 1-2 महीना अच्छा टीवी चलता, फिर ठपाक से ही चलता। मेरे घर पे भी ब्लैक एंड व्हाइट था, मेरे को मालूम है। पीछे से एक लगाओ वॉल्यूम बढ़ जाता, ऊपर से एक लगाओ चैनल बदल जाती। इट वॉज शेयर एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि क्लोज मार्केट था, हम कुछ इंपोर्ट नहीं कर सकते थे। और ये परिस्थिति का इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने पूरा फायदा लिया और ग्राहक मिलते थे। फिर 91 में हमारे जो प्रधानमंत्री रह चुके श्री मनमोहन सिंह जी, उस वक्त वो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह की सरकार में। आपने वो स्कैम देखा है सीरियल? स्कैम सीरियल में 91 में जो मनमोहन सिंह हमारे प्राइम मिनिस्टर बताते हैं, एंडिंग में आप देखना, शायद वो सीरीज नहीं देखना, लास्ट 2 और 3 एपिसोड देख लेना। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। ये कॉन्सेप्ट आए कि लेट अस कनेक्ट इंडियन इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, ताकि दुनिया की सारी चीजें हमको मिले और हमारी जो अच्छी चीजें, कॉम्पिटिटिव चीजें हो, दुनिया को देखने को मिले। आज आप लोग जो देखते हो बात, सैमसंग हमारे भारत में है, सोनी भारत में है, बराबर है, एप्पल इंडिया में है, वॉक्सवैगन इंडिया में है, कई सारे, कोई भी सेक्टर की आप बात करो, सारी कंपनी इंडिया में है, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कनेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी, दैट वाज कॉल्ड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। लाइसेंस सिस्टम खत्म किया 91 में, कई सारे इंडस्ट्रीज की कायदे कानून आए। मैंने अभी बोला ना, आप लोग छोटे हो ये समझने के लिए, लेकिन टोटल इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर बदल दिया मनमोहन सिंह जी ने, और उसके नतीजे आप देख रहे हैं। आज हमारा हिंदुस्तान दुनिया की 6th सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जो एक समय आज से 25-30 साल पहले हिंदुस्तान को कोई पूछता नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं चलती थी, वो आज सब मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया इज ए सेल्फ रिलायंट नेशन इन ईच एंड एवरी सेक्टर। यू सी, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे हैं मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट। आज सारी चीजें हिंदुस्तान में बन रही है। इंडिया इज टर्निंग टू ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी इंडिया की नोंद लेते हैं, इतना पोटेंशियल इकोनॉमी हो गया है हमारा, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1991। समझ में आया? ओके, लेट अस रीड आउट। The government
has brought about certain changes in the economic policy. So, to maintain the pace with the development of the world and India as a developed nation, क्योंकि हमारी इकोनॉमी तब तक मर चुकी थी, लाइसेंस राज में हम इतना लूट चुके थे जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। बड़े बड़े प्रोड्यूसर ने भी प्रोडक्शन बंद कर दिया था क्योंकि यूनियन जैसा था। बहुत लंबी कहानी है, अगर 2 दिन में आपको ये स्टोरी सुनाऊं ना तो भी कम नहीं पड़ेगा। ऐसा समझ में, बहुत लंबी कहानी है। ये जो लिखा है बिल्कुल गलत है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं ये लिखा है वो गलत है। हमको मजबूरी में, आई रिपीट, हमको मजबूरी में हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बदलनी पड़ी। 1991 में जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, तब हिंदुस्तान की हालत इतनी पतली थी कि पूरा हिंदुस्तान बिकने पे तुला था। सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स ने, चाहे बैंक ऑफ जापान हो या वर्ल्ड बैंक हो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, सब ने हमको लोन देने से इनकार कर दिया था क्योंकि सबके पास से हमने पैसा ले रखा था और वो पैसा गवाया था 40 साल का। ये कहीं नहीं छपा, ये सच्चाई है। आप ढूंढ लेना, हाँ, आप लिखना, why we were supposed to change our industrial policy in 1991। सच्चाई आपको मिलेगी, इसमें नहीं लिखी है, हाँ? So, in accordance with the policy of liberalization, it was adopted in the year 1991। क्योंकि 91 में भारत कंगाल हो चुका था, कंगाल, खत्म हो चुका था सब कुछ। कोई उनको पैसे देने के लिए तैयार नहीं। इंडिया की इतनी इज्जत बाजार में थी कि कोई उसको फूटी कोड़ी भी देना नहीं चाहता था। तब वर्ल्ड बैंक ने हमको इंसिस्ट किया कि भाई आपके पास इतने रिसोर्स है, इतना बढ़िया मैन पावर है, इतना पॉपुलेशन है, तो आप अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बदलो। ये जो लाइसेंस राज वाली राजनीति है वो खत्म करो। ये पॉलिटिशियन लोग ने खत्म कर दिया है हिंदुस्तान को, समझ में? तो इंडिया शुड बी अ ओपन मार्केट rather than closed economy, right? According to the policy, certain regulation related to manufacture and trade and commerce was removed। मतलब लाइसेंस सिस्टम खत्म हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जमाना आया, बाहर की कंपनियां हिंदुस्तान में आने लगी। पहले सोनी नहीं आ सकती थी, कई सारे अड़चन थी, अब सोनी हिंदुस्तान में काम कर रही है। पहले हुंडई नहीं आ सकती थी, सैमसंग नहीं आ सकती थी, 91 के बाद सब आ गई। पहले भी कंपनियां थी, मैं ऐसे मना नहीं करता, लेकिन उसको रिस्ट्रिक्शन में काम करना पड़ता था। वो अब खुला काम कर सकते हैं, ऐसा समझ में? ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिलेशन टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाज अनाउंस्ड। इंपोर्ट ड्यूटीज कम की गई, टैक्सेशन स्ट्रक्चर रिवाइज किया गया, राइट? The process of establishing new manufacturing unit was made simple। लाइसेंस खत्म कर दिया, आपको धंधा करना है, आपको बिजनेस, आपको एक फैक्ट्री लगानी है, लगाओ, आपको जो चाहे, जितनी ताकत है उतना काम करो। इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया कनेक्ट हो गया था। As a result, India has been able to keep the pace with the world in terms of production and trade and commerce, as it has generated more employment opportunities। कई सारी इंडस्ट्रीज लगने लगी हिंदुस्तान में, कई सारे कारखाने लगने लगे, और इसकी वजह से फायदा क्या हुआ? नए नए कारखाने लगने से एजुकेशन बढ़ा, आउटपुट बढ़ा, इंडिया की इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बढ़ा, हमारी इनकम बढ़ी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड सुधरा। आज हम जो देख रहे हैं वो 1991 का नतीजा है। आज मेरे को एक चीज आप बताओ, चलो, जो इंडिया में नहीं बनती या नहीं मिलती। कई वर्ल्ड की सारी कंपनियां इंडिया में काम करती हैं। आज इंडिया इतना पोटेंशियल मार्केट है कि सबको इंडिया में आना है, समझ में? पहले प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करते हैं, फिर जाके बना प्राइवेटाइजेशन, पब्लिक सेक्टर का जमाना खत्म किया। After the independence, many public ventures, right, were started by government of India,
With the passage of time, these ventures made losses and incurred losses. मैंने आपको बताया ना वो कैसे लॉस बनाते थे. Many public ventures has to be closed down because of this reason. कई को तो बंद करना पड़ा. क्या करें? This left an impact on our economic system. The workers became united, but the industries suffered losses. लेबर यूनियन का कायदा इतने विचित्र विचित्र कायदे थे, बिजनेसमैन काम नहीं करना चाहता था. क्या करें? The workers became united, but the industry suffered big losses. On the other side, the emphasis on quality increased around the world. The private sector started to make profit. प्राइवेट को मंजूरी दी, खुला आसमान दे दिया. चाहे अब रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी है, टीसीएस कितनी बड़ी, बिकॉज ऑफ दिस प्राइवेटाइजेशन, राइट? All these circumstances motivated privatization. Government started showing inclination towards private sector. मतलब private sector की बोलबाला बढ़ी, employment generate हुआ, एक इज्जत बढ़ी private sector की. है समझ में? The joint sector also started by privatization. With globalization. What is meant by globalization? सारी दुनिया की कंपनी हिंदुस्तान में काम कर सकती है, सारी चीजें हिंदुस्तान में मिल सकती है, और इंडिया की चीजें वो देश में मिल सकती है. That means connecting Indian economy with world economy was called globalization. WTO के तहत जो एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है WTO, उसके आप मेंबर बन जाओ तो सारे मेंबर देश एक दूसरे के देश में काम कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ WTO. उसके साथ तकरीबन 150 देश हिंदुस्तान के साथ काम करते हैं WTO, राइट? ग्लोबलाइजेशन. Globalization means the world becoming one or countries coming closer to each other. Due to globalization, any countries of the world can trade with another very easily. कायदे कानून थोड़े liberal, right? It integrates the product market in the production of units of the various countries, right? हमारी चीजें दूसरे देश में मिलती है, दूसरे देश की चीजें हमको मिलती है, right? The process of growing international relation and the integration of market across the world is called globalization, right? The unique revolution in the field of information technology has stimulated globalization. Globalization की तहत हमारी जो information technology industry है, IT industry, वो दुनिया में सबसे बढ़िया industry है. आप TCS देख लो, आप Infosys देख लो, आप Tech Mahindra देख लो, आप Wipro देख लो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं IT की, right? World Trade Organization established in 1995 was working towards fostering the need of globalization. इसके मेंबर होने के बाद सारे देश एक दूसरे के देश में व्यापार इजीली कर सकते थे. Now effects of globalization. Employment opportunities increased and the service sector due to advent of information technology. उसके रिजल्ट आने शुरू हुए. Phone, fax, mobile, email, internet, video conferencing are some of the revolutionary tools of information technology. जैसे अभी हम आपके पास पहुंच सकते हैं. This is the revolution. मोबाइल सिस्टम नहीं थी पहले. The multinational companies started projects in different countries which have proved profitable to the host nation. आज हिंदुस्तान में कितनी मल्टीनेशनल कंपनी काम कर रही है? आप हिंदुस्तान लीवर देख लो, आप ITC देखो, आप हुंडई देखो, सोनी देखो, सैमसंग देखो, ये सारी मल्टीनेशनल्स हैं. और हमारी भी कंपनी उधर काम करने जाती है. हमारी निर्मा है, रिलायंस है, ये सारी कंपनियां वो देश में काम करती है. बस कंपटीशन, राइट? फॉर एग्जाम्पल, फोर्ड मोटर कार manufacturing plant in India, where cars were manufactured only in India, but in other countries also. Ford जो हमारी कार बने, Hyundai कार बनाती है, इधर बना के वो एक्सपोर्ट करती है दूसरे देश में, right? Apparently, India receives the advantage of this venture. Similarly, big companies of India such as Tata, Infosys, Asian Paints, Parle have exported their commodities to foreign markets. वो हमारे घर पे आते हैं अपनी चीजें बेचने के लिए, हम उसके घर जाते हैं अपनी चीजें बेचने के, जो सही है वो ग्राहक खरीदेगा. ऐसा समझ लो. Consumer gets commodity
price due to competition. For example, China made toys have become very popular in Indian market due to low price and attractive designs. In 1 year, only the Chinese toys have replaced the Indian toys by 70 to 80% short. आप कभी भी देख लो, आपको चाइनीज प्रोडक्ट भी दिखाई देगी क्योंकि चाइना सस्ता और सब अच्छा सारा बनाता है. Now, the toys in the Indian markets are cheaper than before. Right? Due to international trade, the Chinese toys become in Indian market and proved to be better than Indian toys. However, the Indian toys manufacturing traders have incurred losses. So globalization sometimes causes loss to industry. तो हमको हमारी प्रोडक्ट अपग्रेड करनी पड़ेगी वरना हम गुम हो जाएंगे. तो ये सारे जो टॉपिक थे ये थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के. राइट. सो नाउ let us take our homework. Come. You are supposed to write 3 short notes, right? Homework. Write short notes on the following topic. Number 1, liberalization. What is meant by liberalization? आपको मटेरियल में दी गई है. नंबर 2, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन. What is meant by प्राइवेटाइजेशन? उसके फायदे सब कुछ. और थर्ड, ग्लोबलाइजेशन. तो ये 3 शॉर्ट नोट्स आपको होमवर्क पे लिख के भेजने की है. नंबर 1, व्हाट इज मीन बाय लिबरलाइजेशन, व्हाट इज मीन बाय प्राइवेटाइजेशन, व्हाट इज मीन बाय ग्लोबलाइजेशन. बहुत बढ़िया लेसन है, बहुत लंबा लेसन है. आपको अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप नेट पे ढूंढ लेना. न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, व्हाट इज मीन बाय लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन. आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी जो बुक में नहीं दी गई है. है समझ में? सो विद दिस वी आर एंडिंग अवर लेक्चर. मीटिंग न्यू लेक्चर. टिल देन चिल्ड्रन, गुड बाय, सी यू, टेक केयर.